Okay guys, this is -6 right now. Feels like -12. So I will go to a window of my bedroom and try to figure out if I can really see how cold it is outside. Does it seem like cold or no? Here is the window, guys. There is a little bit, snow cluttered outside, but I cannot really say anything if it is that cold or no. I have to go outside to figure out. Let's try to check out the washroom window if I can see anything from there. Absolutely nothing you can say when you see through this window. I think I will only feel it once I go outside and then go to work. What's up guys, this is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine. Please forget my these years because मैं कल 12 घंटे की शिफ्ट लगा के वापस आया था. Since I came back, I just took shower and I went to sleep, so I didn't get much time to groom myself. And right now it's more important to eat than actually grooming yourself because anyways I'm just going to work and there's nobody over there other than me at my shift. And let me show you my breakfast because it's very important to have a good breakfast when you're going for a 12-hour long shift. Though I'm going to order my food there, so you will see that too maybe. Almonds are already done and down. I already reheated the noodles I made. Oh yeah, it's got foggy. That's the problem. You open the microwave, it's foggy. And here is one of the drinks I will grab. And sure, I drink every day almost. Guys, the breakfast is done. I'm running a little bit late, like 5 to 10 minutes. Guys, चाहे जितना मर्जी आप यहाँ पे मतलब रहना शुरू कर दो, जो मर्जी कर लो, पर ठंड तो उतनी लगती है हर बार जब आप नेगेटिव में बाहर जाते हो. Guys, there is snow everywhere. This is my backyard and this is the alleyway. I'm gonna go through which. It's chilling cold, -16. I'm holding this camera right now. It feels real. I really don't want to be in this situation ever in my life. I never thought it's gonna be this cold in Toronto. हमेशा इंसान को अपनी रिसर्च करके आनी चाहिए. I had a couple of friends living in Vancouver. I thought Toronto weather must also be like Vancouver. And shit, man. And when I was coming there, so I was checking the weather according to that, maybe fall or something. Oh my god, I thought it's pretty good. 10-12 degrees is pretty fine. I heard it's gonna be -40. But I thought, okay, how would -40 feel, right? But I should have made enough research that, oh, it's gonna be that cold. But good thing is that I can still bear the cold weather, guys. I mean, better than the hot weather. I can still bear the cold weather. I cannot bear 40 degrees anymore in my life. That's why I decided, no यार, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा पड़ती है गर्मी, तो मैं सोचा उसकी गर्मी से अच्छा मैं यहाँ की ठंड बर्दाश्त कर लूँ, जो कि कुछ मायनों में सही भी लग रहा है. This cold is still better. See my hands. Not wearing any gloves right now. It's a different weather. And जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, मतलब मैं कुछ भी अगर बोल गया हूँ तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट बिकॉज दिस वेदर क्या आपके मुंह से निकलता है आपको समटाइम्स खुद ही नहीं पता लगता. So it's so beautiful right now. Let me show you. Oh, I'm in my first bus, guys. So basically they are properly heated systems. These chairs you see, they are also properly heated. ऐसा नहीं है कि it is cold. And once you enter the inside the bus, you feel cold. अगर आप दरवाजे के पास वाली किसी सीट पे नहीं बैठते हो, you are pretty good. Let me show you दरवाजे. जैसे मान लो ये दरवाज़ा है, फ्रंट वाला वो दरवाज़ा है, या फिर ये दरवाज़ा है. अगर आप इसके पैरेलल वाली सीट पे नहीं बैठते हो तो आपको ठंड नहीं लगती बस के अंदर. और अगर आपको लगे कि हीट की वजह से आपको ज़्यादा वो हो रही है, मतलब बेचैनी टाइप होनी शुरू हो गई है, इतनी ज़्यादा हीट है बस के अंदर, तो फिर ये होते हैं कुछ, ये देखिए, इनको आप खोल सकते हो यहाँ से. इसको आप खोल लो तो आप थोड़ा सा इसको स्लैंट कर सकते हो और फ्रेश एयर आपको मिल सकती है. लेग स्पेस ठीक ठाक है, नॉट गुड इनफ फॉर मी, मतलब बिकॉज आई हैव लॉन्ग लेग्स. बट लेग स्पेस इन डिफरेंट बसेज आर यूजुअली डिफरेंट. तो मतलब इस बस के अंदर लेग स्पेस इतनी है, किसी बस के अंदर इससे ज़्यादा भी हो सकती है. सीट बाय सीट होता है, जैसे पर सीट के हिसाब से. किसी बसेज में सीटिंग सिस्टम थोड़ा टेढ़ा होता है, ऐसे सीधा होने की बजाय. ठंड लगती है ना, जब -16 फील होता है, -17, -20, जो भी टेम्परेचर जाए वो जो फील होता है वो सिर्फ तब होता है आप बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हो बस स्टॉप पे उस टाइम. सेकेंडली जब आप लास्ट बस से उतर के, मतलब ऑब्वियसली आपको टोरंटो के अंदर 2-3 बसेस तो चेंज करनी पड़ती हैं. मेरे को पहले बस लेनी पड़ती है, फिर ट्रेन और फिर बस. जो दूसरी बस मतलब ट्रेन के बाद जो लास्ट बस है उससे जब उतर के वॉक करनी होती है ना, 300, 400, 500 मीटर, उसके अंदर भी आपको ठंड फील होती है. अब देखो यहाँ से जब मैं उतरूँगा ना सबवे स्टेशन पे,
वो जैसे ही मैं बस से उतरा उसके साथ ही डोर है, तो वो मतलब हाफ सेकंड 2 सेकंड लगते हैं उसके अंदर कि आप अंदर घुस सकते हो फटाफट, और उसके बाद अंदर फिर से सारा हीटेड सिस्टम है। आई विल शो यू एवरीथिंग गाइस, जस्ट स्टे इन दिस वीडियो टिल एंड। गाइस हम पहुंच चुके हैं सबवे स्टेशन पे, और अब हम उतरेंगे स्टेशन पे, सभी लोग उतर रहे हैं, एंड आई विल आल्सो गो डाउन। ये है देखिए, मतलब देख लो आप, यहाँ पे अगर बस लगी थी तो यहाँ से चल के सिर्फ यहाँ तक आना था, इतना कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, अंदर जाते ही दोबारा से हीटेड हो गया सारा। गाइस प्रॉपर हीटेड है, जितना भी सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो जितना भी ये एरिया है सारा, ये सारा हीटेड है। इसके बाद नीचे जा रहा हूँ वो भी सारा हीटेड है, तो ये सब कुछ हेल्प करता है नेगेटिव के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपके लिए कनाडा में। गाइस यहाँ पे देखो पूरी गाइड लगी हुई है, अभी दिखाएंगे तुम कहाँ पे हो। अभी मैं यहाँ पे हूँ रनीमीट स्टेशन पे, मुझे जाना है डफरिन, तो मुझे जाना है कैनेडी की तरफ, और यहाँ से मिलती हैं आपको ट्रेन्स जो कैनेडी की तरफ जाती हैं। तो बेसिकली जहाँ कहीं भी सबवे जाओगे ना, और पूरे कनाडा के अंदर यही सिस्टम आपको मिलेगा, ईस्ट बाउंड, वेस्ट बाउंड, साउथ बाउंड, नॉर्थ बाउंड, ऐसे ही। ट्रेन दूसरी साइड की आई है शायद, हाँ दूसरी साइड की आई है, मेरी साइड की नहीं आई है ट्रेन। तो यहाँ ना वेटिंग की भी टाइमिंग लिखी होती है, लेट मी शो यू, अगर मेरे को जगह नज़र आती है वो। तो भाई जैसे लिखा हुआ है कि 2 नंबर ट्रेन जो कैनेडी की तरफ जानी है वो 2 मिनट के अंदर आएगी। तो अगर आप ज़्यादा फॉरदेस्ट एंड पे जाके वेट करोगे तो वहाँ पे आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, इसलिए थोड़ा मिडल में ही रह के ट्रेन की वेट करनी चाहिए हमेशा। अगर उस साइड भी जाओगे वहाँ भी ठंड ज़्यादा लगेगी। तो ये बेस्ट स्पॉट है खड़े होने के लिए, जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हूँ। गाइस ये जो सीट्स होती है ना, ये भी प्रॉपर हीटेड वाली सीट्स होती है। इनके नीचे ना ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर ना ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे वो हैं, मतलब छेद बोलते हैं इनको, और इनसे आपकी हीट वगैरह फ्लो होती है, तो आपको प्रॉपर हीटेड फील होता है। गाइस समटाइम्स तो इवन आई फील कि यहाँ पे हीट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मतलब पीछे से और मेरी बैक से बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है, बिकॉज हीटेड सीट्स में आपको बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी लगनी भी स्टार्ट हो जाती है समटाइम्स। इट इज़ आल्सो एन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। एंड एक और जगह हीट वेंट है यहाँ पे, आपको वो भी दिखा। अगर एक्सट्रीम सर्दी है तो आप ये वाले जो हीट वेंट है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा कैमरे को, हाँ ये वाले जो हीट वेंट्स हैं, इन हीट वेंट्स पे अगर आप ऐसे पैर ऐसे पास रख लो अपना, या कुछ लोग तो इसके ऊपर भी पैर रख लेते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को गंदा कर रहे हो। तो इसके पास अगर अपना पैर रखते हो तो भी आप ठंड से काफ़ी हद तक बचे रहते हो। तो गाइस डफरिन स्टेशन मेरा ट्रेन का स्टॉप था, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं एक एस्केलेटर्स लेके जा रहा हूँ, एंड ऊपर जाके मैं लूँगा नॉर्थ बाउंड बस। तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से स्टेशन के अंदर से जब आप एक बस लेते हो, एक बस लेके हम स्टेशन पे कैसा है वो तो आपने देख लिया, कैसे फटाफट एकदम से हम अंदर आ गए, तो हमें ठंड का एहसास नहीं हुआ। बट व्हेन यू रीच द सबवे स्टेशन एंड फ्रॉम सबवे स्टेशन यू हैव टू टेक अ बस, तो उसका कैसे प्रोग्राम होता है वो आपको दिखाता हूँ, कैसे वहाँ पे ठंड से प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम बना हुआ है। तो गाइस अभी मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे आपको खड़े होकर बस का वेट करना होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जगह पूरी सील होती है विंड से और कोल्ड से, और आप यहाँ पे खड़े होकर ईजीली वेट कर सकते हो अपनी बस के। तो गाइस मैं इन स्टेट से मैं ऊपर आया था, एंड ऊपर आके मैंने यहाँ पे खड़े हो जाना है वेट करने के लिए, और सामने मेरी बस आनी है। वो देखो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना, वो देखो खंबा, ये देखो ये जो लगा हुआ है, यहाँ पे बस आनी है। लिटरली कुछ भी वॉक नहीं है यहाँ से वहाँ तक, और जब बस वहाँ पे आके रुक जाएगी तब मैं यहाँ से जाके बस पकड़ लूँगा। और यहाँ पे बस नॉर्मली रुकती है, क्योंकि किसी न किसी ने स्टॉप प्रेस किया होता है सबवे स्टेशन में सबवे पकड़ने के लिए, तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग। गाइस बहुत सारी ऐप्स आती हैं बस सर्विस को देखने के लिए कि बस जो है वो कहाँ पे और कितने टाइम में बस आपको मिल जाएगी। तो उनमें से ही एक ऐप है TTC की अपनी ऐप, मतलब टोरंटो ट्रांजिट कमीशन की अपनी ऐप, उसका नाम है ट्रांजिट। आई थिंक वो उनकी अपनी ऐप ही है, जो मैंने अभी तक मेरे को पता लगा है। तो उसके अंदर मैं बस देखूँगा, आपको दिखाता हूँ कि उसमें हम बसेस कैसे देखते हैं। तो गाइस मेरे को लेनी है 29 नंबर बस। तो अगर मैं 29 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखते हो कि विल्सन स्टेशन की तरफ जो बस जानी है, अब देखना 2 तरफ जाती है, सेम बस होती है, ये जो एक स्ट्रीट पे सेम ही बस चलती है हमेशा। अब यहाँ इस स्ट्रीट पे जो बस चलती है, जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड जाती है, उसका नाम 29 है, पर मेरे को चाहिए राइट में जाने वाली, मतलब विल्सन स्टेशन पे जाने वाली। वो जो है वो आपकी 0 मिनट के अंदर है, मतलब आप देख रहे हो इसकी रियल टाइम टाइमिंग में यहाँ पे खड़ा हूँ, बस यहाँ पे पहुँच चुकी है। अगर मैंने दूसरी साइड जाना होता तो मैं इसको ऐसे स्वाइप करता, तो एग्जीबिशन पे जो जानी है वो है 4 मिनट के अंदर। और गाइस यहाँ पे भी इंडिया वाला सिस्टम होता है, कुछ लोग जिनको बस पकड़ के पहले वाली सीट लेनी होती है वो पहले ही बाहर जा खड़े होते हैं, उनके लिए ठंड मैटर नहीं करती ना। और ये बस आ गई, चलो चलते हैं। तो भाई
जगह दो। यहाँ पे हमने बस पास को टैप कर दिया, यहाँ पे हम बैठ गए। In case you get too busy listening to music or podcast or something inside the bus and you are afraid of missing your stop, in that way also TTC's app is very helpful. I'll show you how it helps you and sends you a notification in your AirPods or something when you AirPods कोई भी earphone चलेगा, when you reach your destination and when you are 2 stops away from your destination. तो अगर आप मान लो अपने आधे घंटे लंबी बस लेनी है तो उस केस में ये जो नोटिफिकेशन है बहुत आपको हेल्पफुल करती है और आपने बेसिकली अपना स्टॉप सेलेक्ट कर लेता हो। लेट मी शो यू हाउ आई डू दैट। अब जैसे मैंने नॉर्थ टू विल्सन स्टेशन जाना है, ठीक है, चाहे 3 मिनट कुछ भी शो कर रहा है इसको इग्नोर कर दो। एक बार आप बस के अंदर बैठ गए, गो पे प्रेस करो। गो पे प्रेस करने के बाद क्योंकि मैं हर बार जाता हूँ तो मेरे को इससे स्टॉप डिफरेंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप स्टॉप्स पे क्लिक करके ऐसे कोई भी स्टॉप को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, डफरिन स्ट्रीट एट स्टेनर स्ट्रीट। तो यह 12 बजे बेसिकली करेगा क्या, ये देखो आप दिखा रहा है कि 12 बजे पहुँचोगे, 26 मिनट टोटल लगेंगे। तो नोटिफिकेशंस पे अगर आप क्लिक करो तो यू कैन क्रिएट ए रिमाइंडर। 2 मिनट पहले मेरे को रिमाइंडर दो, मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि एनी बेसिस ने 2 स्टॉप्स पहले मेरे को नोटिफिकेशन दे देनी है कि आपका जो स्टॉप है वो आने वाला है। सो दिस वे गाइज यू कैन सेव योर हैसल ऑफ मिसिंग स्टॉप्स इन दिस कोल्ड -16, -16, -20 winter of Canada. And guys, don't go anywhere. At the end I'll show you that how the walkways are once you get off from your bus and you start walking towards your destination, your final destination. So how's the walkway, do they clear the snow and how's everything? I'll show you guys. Just and that portion will be in the end, so you have to stay tuned until the end. देखो गाइस, इस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा था तो अभी सिर्फ 2 स्टॉप्स रह गए हैं मेरा स्टॉप आने को। वो था मेरा स्टॉप, वहाँ पे उतरा था एंड यहाँ से अभी मेरी लाइट आ चुकी है, मैंने बटन प्रेस किया था। नाउ हियर कम द स्ट्रगल गाइस, दिस इज़ द प्रॉब्लम that you have to do a lot of walk sometimes when you wanna go from your last stop, which is basically stop of your last bus towards your work. There is usually a lot of walk in between. Like today my walk is about 400 meters to 450 meters, which is basically about a 10 close to 8 to 10 minutes walk. Now 8 to 10 minutes walk in negative is very hard, and here comes the drawback of using a public transport, that when you're using a public transport basically you have to do a lot of walking from your last stop, and maybe also there is another drawback that I have explained in the start of the video, that you have to wait outside your house or outside your stop waiting for your bus at the first point of boarding. So this is all 2 drawbacks, and this is how usually people, because a lot of people in Toronto they use public transport, so I would say this is not 100% foolproof, but also you know having your own vehicle comes with its own drawback. So you have to like shovel the snow, you have to maybe take care of that, you have to pay more. And मुझे तो देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कन्वीनियंट लगता है बिकॉज इट्स लेस हैसल फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. आई लाइक टू लिसन टू पॉडकास्ट एंड वॉच सम स्टफ वाइल कमिंग टू एंड फ्रो. एंड वैसे भी मेरा काम जो रेगुलर मंडे टू फ्राइडे जॉब है वो अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ तो 28 मिनट है, अगर खुद का ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ तो 25 मिनट है, क्योंकि मैं डाउनटाउन में रहता हूँ. तो डाउनटाउन से जाना इज़ लाइक मतलब वैसे भी बस के अंदर उतना ही टाइम लगता है जितना गाड़ी के अंदर लगता है. गाइस अब क्योंकि ठंड बहुत हो गई है तो मेरा ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल कम हो रहा है और हाथों पे कंट्रोल कम हो रहा है. एंड ये देख लो वॉकवे ऐसे लगते हैं, मैंने बताया था वॉकवे इसके बारे में बताऊंगा. तो यू कैन सी गाइस दिस इज़ हाउ वॉकवेज आर. अभी अगर बहुत ज़्यादा फ्रेश स्नो पड़ी हो ना तो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं ये लोग वॉकवे को, पर अभी क्योंकि स्नो भी थोड़ी पुरानी है, 2-3 दिन पहले थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी थी. एंड बेसिकली ये ना हिट बैक है विंटर का. ये लास्ट आप बोल सकते हो कि एक लहर चल रही है, लास्ट लहर चल रही है एक विंटर की. इसके बाद विंटर जो बहुत डिप्लीट हो जाएगी, फिर वो 2-3 डिग्री वाला टेम्परेचर आ जाएगा. बट दिस इज़ द लास्ट फ्यू डेज एंड दैट्स इट गाइस. फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, लाइक करना, वीडियो शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. और या पीस आउट, बाय बाय. पॉट डोरी.